Hello everyone, welcome to the PSIR PYQ series. So we have discussed PYQs of two topics, which is the comparative politics and also the state and comparative perspective. Today in this video, we will be discussing a previous year question related to politics of representation and participation. So under this topic, you have to study about political parties, social movements, pressure groups, and you have to make a comparison that how pressure groups are functioning in developed countries, how they are functioning in developing countries. So here you need to gather examples of both national and international level to reduce your effort so that you don't have to go here and there searching for examples, etc. I have provided many examples in this PYQ series. If you want to download the PDF of these PYQ model answers, etc., or brainstorming sheets, you can join the Telegram channel PSIR Daily Answer Writing Group. Okay. Now, critically examine the role of political parties in sustaining and stabilizing democracies in the developing societies. So, this question here is linked to the role of political parties. We have to critically examine. Critically examine means to what extent the political parties have been successful in stabilizing democracies and what are the issues. So, here now, what the examiner demands, that is, you need to have an understanding of political parties. You should know the role of political parties in different countries like South Africa, Kenya, Indonesia, India, etc. How they have stabilized democracy. You should have an scholarly understanding of the political parties. What are the views of scholars? Like how scholars define the role of political parties in stabilizing democracy or in erosion of democracy. Then we can also suggest certain solutions because we will also be mentioning the challenges to what extent political parties are not able to stabilize democracy. So in that scenario, we also need to mention certain solutions. So what the examiner wants, I think this I have thoroughly discussed. Then what are the scholars or key ideas that you have to write about? So for example, you can talk about Sartori. Sartori जो define करते हैं कि political parties जो है वो channels of representation है. Channels of representation कैसे? For example, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर हमने जैसे अपना जो भी एमपी एमएलए हम जो इलेक्ट करते हैं वो जाकर हमारी बात को पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में रखते हैं. सो दैट इज वाई पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के जो भी ओपिनियंस होते हैं, व्यूज होते हैं, डिमांड्स होती है, उसको नेशनल या स्टेट लेवल पर लेकर जाते हैं जिसके थ्रू कोई भी पॉलिसी या बिल बनकर आता है. फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट, तो इसीलिए गवर्नमेंट लेकर आई नारी शक्ति वंदन अधिनियम. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स थ्रू विच वी कैन कंसीडर कि हाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो चैनल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है. देन अनदर स्कॉलर लिपसेट एंड रॉकन, तो लिपसेट एंड रॉकन कह रहे हैं कि पार्टी सिस्टम्स जो है वो हेल्प करती हैं इन स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसीज. कैसे कि बाय मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, बाय मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी. जो अपोजिशन पार्टी होती है वो रूलिंग गवर्नमेंट से पूछ रही होती है कि आप क्या कर रहे हो, ये वाले फंड्स कहाँ गए, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो रही है. फिर आलमंड एंड वर्बा भी बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का काफी ज्यादा रोल है इन डेवलपिंग अ सिविक कल्चर. तो ऐसे करके यहाँ पर काफी सारे स्कॉलर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल हंटिंगटन, डुवर्जर. तो अब आप देखिए कि यू आर राइटिंग एन ऑप्शनल आंसर. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कैसे ऑप्शनल का आंसर जीएस के आंसर से डिफरेंट होता है. सो दीज आर दी थिंग्स. यू डोंट हैव टू कोट सो मेनी स्कॉलर्स इन जीएस आंसर्स, बट ऑप्शनल में आपको कोई स्कॉलरली व्यू देना पड़ेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट कि कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने स्टेबलाइज की डेमोक्रेसी, तो हम जैसे इंडिया की बात कर सकते हैं कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जब कांग्रेस आती है तो उसने काफी चीजें की इन स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसी. रीजनल पार्टीज भी लोगों के ओपिनियंस रखती हैं, तो दे ऑल्सो डीपन डेमोक्रेसी. अफ्रीका में अगर हम बात करें तो वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी है एएनसी, ओके, उसने इनिशियली तो स्टेबलाइज किया था लेकिन करेंटली वहां पर इट इज फेसिंग इश्यूज विद रेस्पेक्ट टू करप्शन, तो जिसकी वजह से इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है. फिर अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो वेनेजुएला में पार्टी कोलैप्स हुई, अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट देखने को मिल रहा है. तो वहां पर फिर से मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं. साउथ एशिया में नेपाल वगैरह में हमें इस तरह का ट्रेंड ट्रेंड देखने को मिलता है. तो सबसे पहले अगर हम इसके आंसर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज बता सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द डिफरेंट स्कॉलर्स. देन
हमें मेजर चीज बतानी है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डेमोक्रेसी को सस्टेन करती हैं। फॉर एग्जांपल डाइवर्स इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हेल्प करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करती है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करती हैं। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एज वेल, जैसे कि पेट्रोनेज, क्लाइंटेलिज्म, इंडिया में अगर हम देखें कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, इनस्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल कोएलिशन, फिर इनस्टेबिलिटी हमें नेपाल, पाकिस्तान यहाँ भी देखने को मिल रही है, पर्सनालिटी कल्ट्स। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से कई बार पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को सस्टेन नहीं कर पाई हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो कंक्लूजन में हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सस्टेनिंग डेमोक्रेसी, बट एफिकेसी कब आएगी? जब इंटरनल डेमोक्रेसी हो, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो और अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है। So that was all about today's video. See you all in the next session.